My dear students, welcome to Mathological. Start करते हैं सेशन. So first question from CAT 2018. Point P lies between points A and B such that length of BC is thrice that of AP. Car 1 starts from A and moves towards B. Simultaneously, car 2 starts from B and moves towards A. Car 2 reaches P 1 hour after car 1 reaches P. If the speed of car 2 is half that of car 1, then time in units taken by car 1 in reaching from point P to A. So point P lies somewhere in between points A and B. And that somewhere is where the length of BP is thrice that of AP. So BP is 3 times that of AP. So here somewhere will be point P. And AP और BP का रेशियो क्या है? 1:3. 1:3 है. ठीक है. So let us say if this is AP distance is D, PB distance will be 3D. Car 1 starts from A and moves towards B. Car 2 starts simultaneously at the same time from B and moves towards A. Car 2 reaches P 1 hour after car 1 reaches P. So car 1 takes, let us say, T hours in reaching P. Car 2 is taking 1 hour more, T plus 1 hours. Additionally, speed of car 2 is half that of car 1. Speed of car 2 is half that of car 1. तो डिस्टेंस का रेशियो हमें पता है, स्पीड का रेशियो भी पता है, टाइम का रेशियो निकल आएगा. और टाइम में क्योंकि वैल्यू गिवन है तो वहां से सॉल्व कर लेंगे. क्या है? क्लियर है? तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है? फॉर कार 1 एंड कार 2 रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज 1:3. स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड ऑफ कार 2 इज हाफ दैट ऑफ कार 1. तो अगर कार 1 का स्पीड 2 है, कार 2 का स्पीड कितना है? 1 है. तो टाइम का रेशियो क्या देगा? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, दैट इज टाइम. तो 1/2 is to 3. That is the ratio of time. Okay. So basically 1:6 का रेशियो आ गया कार 1 और कार 2 में टाइम का. बट कार 2 इज टेकिंग T plus 1 hours, यानी कि 1 hour एक्स्ट्रा ले रही है कार 2. टाइम टेकन बाई कार 2 इज 1 hour एक्स्ट्रा, which is 60 minutes extra. And difference between time is 1 and 6 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 minutes का. तो 5 units must be 60 minutes. यही तो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है. सो 1 यूनिट विल बी 12 मिनट्स. अगर 5 यूनिट 60 है तो 1 यूनिट विल बी 12. और क्वेश्चन ने पूछा है टाइम टेकन बाय कार 1 इन मिनट्स. तो कार 1 का टाइम कितना हो जाएगा? 1 यूनिट, यानी कि 1 × 12. 12 मिनट्स विल बी आवर आंसर. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्टेंस फ्रॉम A to B is 60 kilometers. Partha and Narayan start from A at the same time and move towards B. Partha takes 4 hours more than Narayan to reach B. Moreover, Partha reaches the midpoint of A and B 2 hours before Narayan reaches B. तो स्पीड ऑफ पार्था इन किलोमीटर पर आवर क्या होगा? अगेन बस डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन विल बी सॉल्व वेरी इजी. तो बिटवीन A एंड B कितना डिस्टेंस गिवन है? डिस्टेंस गिवन है हमें 60 किलोमीटर्स का. पार्था एंड नारायण स्टार्ट फ्रॉम A एट द सेम टाइम. तो दे बोथ, पार्था एंड एज वेल एज नारायण, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम but and move towards B. Partha takes 4 hours more than Narayan to reach B. 4 hours more than Narayan to reach B. So if time taken by Narayan is T hours, time taken by Partha will be T plus 4 hours. Isn't it so? ठीक है. Time taken by Partha will be T plus 4 hours. Then question is saying Partha reaches the midpoint of A and B 2 hours before Narayan. So if Partha is taking T plus 4 hours in reaching the end point, मिड पॉइंट पे कब पहुंचा होगा? कांस्टेंट स्पीड है तो अगर T plus 4 आवर्स में एंड पॉइंट पे पहुंचा है तो मिड पॉइंट पे पहुंचा होगा हाफ द टाइम में, यानी कि मिड पॉइंट पे पार्था पहुंचा होगा T plus 4/2 आवर्स में. एंड क्वेश्चन इज आल्सो सेइंग दैट ही रीच्ड एट द मिड पॉइंट 2 आवर्स बिफोर नारायण रीचेस B. नारायण B पे रीच किया है T आवर्स में. सो पार्था हैज रीच्ड मिड पॉइंट एट T minus 2 आवर्स. बस इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेना है. T plus 4/2. This is equal to T minus 2. So T plus 4 is equal to 2T minus 4. This is equal to 2T minus 4. So T will be equal to 8 hours. क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्पीड ऑफ पार्था क्या होगी? सो पार्था इज टेकिंग T plus 4 hours, यानी कि टोटल 12 आवर्स ले रहा है. डिस्टेंस है 60 का, तो स्पीड विल बी 60/12, 5 किलोमीटर पर आवर.
This will be our answer 5. Option D will be the answer. Clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. On a long stretch of east-west road, this is east, this is west. On a long stretch of east-west road, A and B are 2 points such that B is 350 km west of A. One car starts from A and another from B at the same time. If they move towards each other, they meet after 1 hour. If they both move towards east, they meet in 7 hours. Difference between their speeds क्या होगा? तो when the cars are moving in the same direction, relative speed is difference of speeds. और क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेम डायरेक्शन में जब वो मूव कर रहे हैं, दे मीट इन 7 hours, और डिस्टेंस भी गिवन है, तो इस क्वेश्चन में करना कुछ और है ही नहीं. S1 minus S2, दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस 350 डिवाइडेड बाई टाइम 7, 50 किलोमीटर पर आवर. बस दैट्स ऑल, खत्म क्वेश्चन. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. ओके, कुछ भी नहीं करना था, बाकी इंफॉर्मेशन एडिशनल जो है उसका कोई जरूरत नहीं है. हमें तो डिफरेंस ऑफ स्पीड्स ही चाहिए, और डिफरेंस ऑफ स्पीड्स हमें स्ट्रेट अवे सेम डायरेक्शन में मिल जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 350/7. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स ए एंड बी. अच्छा हाँ, पॉइंट्स ए एंड बी आर 150 किलोमीटर अपार्ट. कार्स 1 and 2 travel from A to B, but car 2 starts from A when car 1 is already 20 kilometers away from A. Each car travels at a speed of 100 km per hour for the first 50 kilometers, at 50 km per hour for the next 50 kilometers, and at 25 km per hour for the last 50 kilometers. So distance in kilometer between car 2 and B when car 1 reaches B क्या होगा? So points A and B के बीच का distance that is 150 kilometer. ठीक है, and each car travels at a speed of 100 for the first 50 kilometer. For the next 50 it travels at a speed of 50, and for the next 50 it travels at the speed of 25. तो टोटल टाइम तो ट्रेवल टाइम तो सेम ही होगा. फ्रॉम ए टू बी ट्रेवल टाइम, टोटल टाइम फॉर कार 1 एज वेल एज कार 2 विल बी एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, इजंट इट सो? कितना ट्रेवल टाइम होगा? दैट टोटल टाइम विल बी इक्वल टू, फॉर फर्स्ट 50 द स्पीड इज 100, तो 50/100. नेक्स्ट 50 के लिए स्पीड भी 50 है, 50/50, एंड देन नेक्स्ट 50 के लिए स्पीड इज 25, 50/25. तो टाइम टेकन विल बी 1/2 + 1 + 2, तो 3.5 hours. Total travel time will be 3.5 hours. Okay. Car 1 and 2 start travel from A to B, but car 2 कब start करती है? Starts from A when car 1 is already 20 kilometers away from A. तो car 1 जब already 20 kilometers travel कर चुकी है, then car 2 starts its journey. So when car 1 is, let us say, at this position 20 kilometers away, then car 2 starts its journey. टाइम कितना लगेगा car 1 को इस डिस्टेंस पर पहुंचने में? For the first 50 km speed is 100, so time taken will be 20/100. 20 distance कवर किया है 100 की स्पीड से, which is 1/5 hours, which is equal to 12 minutes. So basically car 2 starts after 12 minutes. Starts after 12 minutes of start of car 1. Is that it? So let us say car 1 started at 10 या 00 पे स्टार्ट हुई है कार 1. तो 12 मिनट्स के बाद में इट इज एट दिस पोजीशन. एंड पॉइंट पे बी पे कब पहुंचेगी कार 1? बी पे कब पहुंचेगी? बी पे पहुंचेगी आफ्टर 3.5 hours फ्रॉम द स्टार्ट, तो एट 3:30 कार 1 विल रीच एंड पॉइंट. और क्वेश्चन यही पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन कार 2 एंड बी व्हेन कार 1 रीचेस बी. तो एट 3:30 व्हाट विल डिस्टेंस बिटवीन कार 2 एंड बी? बट कार 2 ने स्टार्ट किया है आफ्टर 12 मिनट्स, और टोटल जर्नी में टाइम लगने वाला है कार 2 को भी 3.5 hours का. Isn't it so? टोटल जर्नी में कार 2 को भी 3.5 hours का टाइम लगने वाला है, यानी कि कार 2 विल बी रीचिंग बी एट 3:42. तो 12 मिनट्स के बाद में पहुंच जाएगी, बट अभी तो नहीं पहुंची है ना, तो अभी कार 2 मस्ट बी समवेयर हियर एट दिस पोजीशन, लेट अस से. सो आफ्टर 12 more minutes कार 2 विल बी रीचिंग द एंड पॉइंट बी. तो 12 मिनट्स में जितना जर्नी करेगी, जितना ट्रेवल करेगी, उतना ही डिस्टेंस पीछे होगा, उतना ही डिस्टेंस पीछे होगा. तो स्पीड क्या है? एट प्रेजेंट स्पीड क्या होगा? क्योंकि इस पोजीशन पे है, फॉर लास्ट लेग ऑफ 50 किलोमीटर है, और वहां पे स्पीड है 25 का. तो 12 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 12 मिनट्स, यानी कि 12/60 hours into 25, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 kilometers. So in next 12 minutes car 2 will be traveling distance of 5 kilometers, so it must be 5 kilometers short of point B.
कार 2 विल बी 5 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ पॉइंट बी, यानी कि टोटल डिस्टेंस है 150 का, यानी कि अगर पॉइंट ए से पूछता तो 145 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बट पॉइंट बी से कार 2 इज एट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस एट 3:30। ठीक है, टाइम तो मैं समझाने के लिए बस बताया, अदरवाइज लॉजिक इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है कि एट द स्टार्ट कार 2 स्टार्टेड आफ्टर 12 मिनट्स, तो एट द एंड कार 2 इज जस्ट 12 मिनट्स शॉर्ट, और लास्ट 12 मिनट्स का डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 12 मिनट्स, यानी कि 1/5 आ रहे हैं, 1/5 इंटू स्पीड, 1/5 इंटू 25, आंसर विल बी 5। सो दैट इज ऑल, इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, बस समझने के लिए जितना टाइम लगा उतना लगा। क्या क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट्स ए, पी, क्यू एंड बी, A, P, Q and B lie on the same line such that P, Q and B are respectively 100, 200 and 300 km away from A. So this is A, this is B, and P, Q and B are 100, 200 and 300 km away from A. यानी कि distance between AP is 100, PQ is also 100 and QB is also 100. Cars 1 and 2 leave A at the same time and move towards B. So car 1 as well as car 2, they both are moving at the same time, started at the same time towards B. Simultaneously car 3 leaves B and moves towards A. So at the same time car 3 has left B and is moving towards A. car 3 meets car 1 at Q and car 2 at P. तो car 1 चलती चली आ रही है, ठीक है, at point Q car 1 and car 3 had a meeting, they crossed each other at point Q, and car 2 को मिली है car 3 at point P. Isn't it so? तो पहले किस कार को मिली होगी, कार 1 को मिली है at point Q, बिकॉज B से आ रही थी तो B से Q पे आई, कार 1 को मिली, फिर इसके बाद में Q से P पे आई, कार 2 को मिली, दैट इज द प्रोसेस। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, हमें तो रेशियो में चाहिए स्पीड का वैल्यू, तो डिस्टेंस ऐसे समझ लो कि 100 100 100 यानी कि 1:1 का रेशियो है। This is D, this is also D, and then last leg is also D. So at the first moment car 3 has traveled D distance when it met car 1, but car 1 ने कितना distance travel किया at the same time? Distance traveled by car 1 is 2D. Let us say that is at time t. तो second time when car 3 is meeting car 2, distance traveled car 3 का कितना है, 2D, डबल डिस्टेंस है, स्पीड सेम है, तो टाइम 2t हो जाएगा, बट कार 2 हैज ट्रेवल्ड ओनली डिस्टेंस d। तो क्या ये पार्ट क्लियर है कि टाइम की वैल्यूज हमें पता चल गया और डिस्टेंस कवर्ड का वैल्यू पता चल गया फॉर कार 1 एज वेल एज कार 2 फॉर टू डिफरेंट इंस्टेंसेस, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार 2 टू दैट ऑफ कार 1, पहले स्पीड आ रही है कार 2 की, ठीक है, तो यहां पे टाइम का रेशियो देख लें, तो टाइम क्या लग रहा है, सेम टाइम नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है, टाइम क्या है, कार 1 को 2D डिस्टेंस ट्रेवल करने में t टाइम लग रहा है, कार 1 इज टेकिंग t टाइम इन ट्रेवलिंग 2D डिस्टेंस, while car 2 is taking, क्योंकि car 2 is to car 1 का रेशियो लेना है, तो car 2 is taking 2t टाइम इन ट्रेवलिंग d डिस्टेंस, तो डिस्टेंस d है बट टाइम लग रहा है 2t, और डिस्टेंस बाय टाइम विल बी स्पीड, तो स्पीड आ जाएगा हमारा d by 2t is to 2d by t फॉर car 2 वर्सेस car 1, और d और d by t कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1/2 is to 2, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, सो दिस विल बी इक्वल टू 1:4, रेशियो इन द करेक्ट ऑर्डर विल बी 1:4, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर। क्या है क्लियर है? ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी सोच सकते थे फॉर द सेम क्वेश्चन, व्हेन कार 3 रीचेस Q, कार 1 हैज कवर्ड डिस्टेंस 2D, ठीक है, व्हेन कार 3 रीचेस P, तो कार 3 ने पहले डिस्टेंस d ट्रेवल किया है, अब 2D ट्रेवल किया है, और जब 2D ट्रेवल किया है, डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, देन ट्रेवल डिस्टेंस बाय कार 2 इज d। सो एट द फर्स्ट इंस्टेंस जबकि कार 3 हैज ट्रेवल्ड ओनली d डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2 कितना होगा, हाफ ऑफ d, तो दैट विल बी d/2, d/2। तो फॉर द सेम टाइम कार 1 हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस 2d व्हाइल कार 2 हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस d/2, तो जब टाइम सेम है तो डिस्टेंस कवर्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, सो कार 1 का डिस्टेंस है 2d, कार 2 का है d/2, तो यही स्पीड का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, बट कार 1 एंड कार 2 ये ध्यान रखना है, ऑर्डर का ध्यान रखना है हमेशा, सो दिस विल बी 4:1 फॉर कार 1 एंड 2, तो अपोजिट यानी कि 1:4 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन लीव्स हिज होम
and walks at a speed of 12 km per hour, reaching the railway station 10 minutes after the train had departed. If instead he had walked at a speed of 15 km per hour, he would have reached the station 10 minutes before the train's departure. So distance from his home to the station क्या होगा? Very easy question. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. तो a man leaves his home and walks at a speed of 12. तो स्पीड की वैल्यूज हमें गिवन है 12 है फर्स्ट केस में, 15 है सेकंड केस में, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो 12:15 है, यानी कि 4:5 है. तो टाइम का रेशियो जस्ट ऑपोजिट होगा, 5:4 होगा. और फर्स्ट केस में ही इज 10 मिनट्स लेट, ही रीचेस 10 मिनट्स आफ्टर द ट्रेन हैज डिपार्टेड, और सेकंड केस में ही रीचेस 10 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर. तो फर्स्ट केस में ही इज 10 मिनट्स लेट और सेकंड केस में ही इज 10 मिनट्स अर्ली, यानी कि गैप कितना है? 20 मिनट्स का गैप है, और 5:4 के बीच का गैप कितना है? 1 यूनिट. तो 1 यूनिट इज इक्वल 20 मिनट्स. अब किसी भी एक केस में टाइम निकाल लो. तो अगर हम टाइम 4 यूनिट्स निकालें, दिस विल बी 80 मिनट्स, और 80/60 4/3 आवर्स, और स्पीड है 15 का. तो डिस्टेंस डी विल बी 15 इंटू 4/3, दैट इज 20 किलोमीटर. आंसर विल बी 20 किलोमीटर. ओके, next question. In a 10 km race, A, B and C each running at a uniform speed get the gold, silver and bronze medals. A जीता, B second, C third. If A beats B by 1 km, so A is beating B by 1 km. Total travel distance कितना है? Total race का track length कितना है? 10 km का है. यानी कि when A has covered 10 km distance, B has covered 9 km at the same time. तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 10:9 का, या डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो आ जाएगा 10:9 का, सेम टाइम है. सिमिलरली B is beating C बाई 1 किलोमीटर, तो बी और सी के बीच का रेशियो भी क्या आएगा? 10:9 का. ओके, सो ए बी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा? ए के लिए 10 × 2 100, 10 × 10 100, फॉर बी दिस विल बी 9 × 10 90, और सी के लिए दिस विल बी 81. तो व्हेन ए कवर्स 100 मीटर्स, बी कवर्स 90 मीटर्स, सी कवर्स 810 मीटर्स, तो रेशियो आ गया ए और बी और सी के लिए 100 90 81 का. ओके, बट हमें क्वेश्चन पूछ रहा है बाय हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी. By how many meters does A beat C? So when A covers 100 meters, C covers 81. So C is 19 meters short. और टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर है. तो बस अगर 100 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.1 किलोमीटर, तो 19 यूनिट्स कितना हो जाएगा? 19 इंटू 0.1, 1.9 किलोमीटर. बट क्वेश्चन में मीटर्स में पूछा है, तो 1900 आंसर आ जाएगा. 1900 मीटर्स विल बी द आंसर. ओके, अदरवाइज ऐसे भी देख सकते थे कि A हैज कवर्ड 10 किलोमीटर डिस्टेंस, B इज 1 किलोमीटर बिहाइंड हिम, तो B हैज कवर्ड 9 किलोमीटर डिस्टेंस, एंड B बीट C बाई 1 किलोमीटर. तो B और C का स्पीड का रेशियो क्या है? 10:9 का. तो व्हेन B हैज कवर्ड 9 किलोमीटर डिस्टेंस, C मस्ट हैव कवर्ड 90% ऑफ 9 किलोमीटर्स और 10% लेस, तो C विल बी 900 मीटर्स बिहाइंड. सो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 1900 मीटर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अरुण ड्रोव फ्रॉम होम टू हिज हॉस्टल एट 60 miles per hour. While returning home, he drove halfway along the same route at a speed of 25 miles per hour, and then took a bypass road which increases his driving distance by 5 miles, but allowed him to drive at 50 miles per hour along this bypass road. So if his return journey took 30 minutes more than his onward journey, then total distance traveled by him क्या होगा? So for his onward journey the speed was 60. अब रिटर्न जर्नी क्योंकि टाइम डिस्टेंस सेम नहीं है, एक्स्ट्रा 5 miles ऐड हो गया, तो अवर आंसर विल डिपेंड ऑन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, बिकॉज एक्स्ट्रा 5 mile ऐड कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड कर दिया है यहाँ पे. ठीक है, सो इफ दैट हैज बीन एडेड, तो हमको डिस्टेंस अज्यूम करना पड़ेगा कि डिस्टेंस लेटर से डी है, तो ऑनवर्ड जर्नी में टाइम कितना लगेगा? D/60. दिस विल टाइम फॉर ऑनवर्ड जर्नी. और रिटर्न जर्नी का टाइम क्या होगा? रिटर्न में he has traveled in 2 parts. फर्स्ट पार्ट में क्या है? हाफ वे along the speed is 25. तो 2D मान लेते हैं क्योंकि हमें डिवाइड बाई 2 करना है. 2D मान लिया टोटल डिस्टेंस ऑफ वन साइड. ओके, और लौटते समय फॉर हाफ द डिस्टेंस, यानी कि फॉर डिस्टेंस D his speed is 25. देन फॉर D his distance was remaining, बट उसके डिस्टेंस 5 miles से इंक्रीज कर गया बिकॉज ही चेंज द रूट. तो नाउ द डिस्टेंस विल बी D+5 and speed is 50. So this is his time taken by him in the return journey, and time taken by him in the return journey is 30 minutes more than the onward journey. So this time
इज दिस टाइम प्लस 30 मिनट्स, तो 1/2 यहां पे ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करते समय भी ध्यान रखना है, ये रिटर्न जर्नी में ऐड नहीं करना था। ठीक है, सो ऑनवर्ड जर्नी से 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा तो ऑनवर्ड जर्नी में ऐड कर दो 1/2, या फिर रिटर्न जर्नी में सब्ट्रैक्ट कर देते, दोनों बातें एक ही है, बट दोनों में से कोई एक काम करना था। ठीक है, सो हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद में एक काम करते हैं, हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रहा है 260, 25, 50, तो डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई दिस बाई 300, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और या फिर 150 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर और सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, चलो 300 से ही कर लेते हैं। 300/2 इज 150 प्लस 2d इंटू 5 10d, दिस इज इक्वल टू 12d प्लस 6d प्लस 6 इंटू 5 30, तो 12d प्लस 6d 18d माइनस 10d, 8d इज इक्वल टू 120 एंड हेंस d विल बी इक्वल टू 15 माइल्स। अब यहां पे लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, हालांकि ऑप्शंस ऐसे दिए हैं कि उससे गलती नहीं होगा तुमसे। क्वेश्चन ये पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। ऑप्शंस थोड़े से ट्रिकी दिए होते तो मजा आता। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, इन द ऑनवर्ड जर्नी हिज डिस्टेंस इज 2d, इन द रिटर्न जर्नी हिज डिस्टेंस इज 2d प्लस 5, तो टोटल डिस्टेंस इज 4d प्लस 5 एंड हेंस 4 इंटू 15 प्लस 5, टोटल डिस्टेंस इज 65 माइल्स। Option C will be the answer. Okay. 65 miles will be the answer in this case. Next question. A motorbike leaves point A at 1 p.m. and moves towards point B at a uniform speed. A car leaves point B at 2 p.m. and moves towards point A at the uniform speed, which is double that of the motorbike. तो कार का स्पीड डबल है. They meet at 3:40 p.m. at a point which is 168 km away from A. What is the distance in kilometer between A and B? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. So there is a point A, another point is B, and then in the middle somewhere they meet at 3:40 p.m. From point A, bike started at 1 p.m. ठीक है, and car started from point B at 2 p.m. Okay, so travel time हमें पता है, ट्रैवल टाइम यहां से निकल आएगा. सो फॉर बाइक ट्रैवल टाइम कितना है, फ्रॉम 1 PM टू 3:40 PM, कितना डिफरेंस आएगा, 2 hours and 40 minutes, यानी कि 2 and 2/3 hours फॉर बाइक. एंड डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, द गैप द टाइम मीटिंग पॉइंट इज 168 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, तो दिस डिस्टेंस इज 168 किलोमीटर्स. यहां से बाइक की स्पीड आ जाएगी. बाइक का स्पीड अगर ऐसा है तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट, क्या कह रहा है, कहां पे कह रहा है, हाँ एक सेकेंड. A car leaves point B at 2 PM and moves towards point A at a uniform speed which is double that of motorbike. तो अगर बाइक का स्पीड ऐसा है तो कार का स्पीड इज 2s. और टाइम टेकन बाई कार कितना है, फ्रॉम 2 PM टू 3:40 PM, दैट विल 1 hour and 40 minutes, यानी कि 1 and 2/3 hours इज द टाइम. ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाई कार विल बी 5/3 इंटू 2s, और यहां पे हमें वैल्यू गिवन है s इंटू 2 and 2/3 is 8/3, that is 168. So 8 से 21 बचेगा, तो s is equal to 63 आ गया. And if s is 63, तो 5/3 into 2s कितना होगा, 5/3 into 2 into s is 63, 3 से गया 21, 21 into 10, 210 किलोमीटर. तो if this is point is m, am distance is 168, mb is 210, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 168 प्लस 210, 378. ऑप्शन बी. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ मैन ट्रेवल्स बाय अ मोटर बोट डाउन अ रिवर टू हिज ऑफिस एंड बैक विद द स्पीड ऑफ द रिवर अनचेंज्ड. इफ ही डबल्स द स्पीड ऑफ हिज मोटर बोट, then his total travel time gets reduced by 75%. The ratio of the original speed of the motor boat to the speed of the river क्या होगा. Now this is a good question, especially good कि तुम कैसे उसको अटेम्प्ट करते हो. तो टेक योर टाइम, ट्राई टू सॉल्व इट. द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अप्रोच कैसे करते हो इस क्वेश्चन को. बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, हो सकता है बहुत सारे लोग अटको भी, बट इन द मोस्ट केसेस आई बिलीव कि क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट टाइम लगेगा, गलती करोगे या टाइम ज्यादा लोगे.
क्योंकि वेरिएबल्स वगैरह मानने में पड़ जाओगे तो फिर कहानी हो जाएगी क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा मानोगे तो। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बिना उसके तो सॉल्व नहीं होगा। ए मैन ट्रेवल्स बाय मोटर बोट डाउन अ रिवर टू हिज ऑफिस एंड बैक। तो ही गोज फ्रॉम लेट अस से हिज होम टू ऑफिस वाया मोटर बोट। अब वो मोटर बोट से जा रहा है विद द स्पीड ऑफ द रिवर अनचेंज्ड। तो रिवर का स्पीड हमने मान लिया, मान लेते हैं लेट अस से, क्या माने पहले अभी स्टार्ट के लिए वी मान लेते हैं। इफ ही डबल्स द स्पीड ऑफ द मोटर बोट देन हिज टोटल ट्रैवल टाइम गेट्स रिड्यूस्ड बाय 75%। तो यू अगर स्पीड ऑफ द मोटर बोट है, इनिशियली फॉर द फर्स्ट केस स्पीड है यू, सेकंड केस में क्या हो जा रहा है, स्पीड हो जा रहा है 2u। मोटर बोट का स्पीड डबल हो जा रहा है, जबकि रिवर का स्पीड भी ही है। एंड ही इज गोइंग, लेट अस से ही इज गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड देन ही कम्स बैक अपस्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा u प्लस v और अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा u माइनस v। और सेकंड केस में डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 2u प्लस v और अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 2u माइनस v। इजंट इट सो? ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है हुज टोटल ट्रैवल टाइम गेट्स रिड्यूस्ड बाय 75%। टोटल ट्रैवल टाइम गेट्स रिड्यूस्ड बाय 75%। 75% यानी कि 3/4 से टाइम रिड्यूस हो जा रहा है, यानी कि अगर टाइम इनिशियली 4 था अब 3 हो जाएगा, सॉरी अब 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 से रिड्यूस हो रहा है। 75% रिड्यूस हो रहा है, यानी कि बच रहा है 25%। तो अगर इनिशियली टाइम वाज टोटल 4t, नाउ टाइम विल बी t ओनली बिकॉज ही डबल्ड हिज स्पीड। क्या बात समझ में आती है? क्वेश्चन इज आस्किंग रेशियो ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मोटर बोट टू द स्पीड ऑफ द रिवर। अब यहाँ पे अननोन हमारे पास बहुत सारे हैं, टी भी एक अननोन है, यू भी अननोन है, वी भी अननोन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन में हमें चाहिए रेशियो ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मोटर बोट टू द स्पीड ऑफ द रिवर, यानी कि हमें चाहिए u अपॉन v, u अपॉन v की वैल्यू चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस का कोई रोल है यहाँ पे? कोई रोल नहीं है, डिस्टेंस कैन बी एनी वैल्यू। तो डिस्टेंस एक एक्स्ट्रा अननोन है। ठीक है, सो हम क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मोटर बोट टू द स्पीड ऑफ द रिवर, तो लेट अस अज्यूम कि v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, और u हमारा u ही रहने दो, या फिर u को x कर लेते हैं, x कर लेते हैं सिंपल। ठीक है, तो रेशियो में क्या चाहिए, x इज टू 1 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की ही वैल्यू निकालनी है। अवर ओनली अननोन रिमेन्स x। डिस्टेंस भी कुछ भी मान सकते हैं, डिस्टेंस को मान लेते हैं 1 किलोमीटर। सब कुछ बिल्कुल सिंपल रख लिया आपने। ये फर्स्ट केस में टाइम कितना लगेगा, फर्स्ट केस में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, u है x, v है 1, तो 1 अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। दिस विल बी टाइम इन द फर्स्ट केस। सेकंड केस में टाइम कितना लगेगा, 1 इज द डिस्टेंस और स्पीड है 2x, तो 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। दिस इज द टाइम इन द सेकंड केस। और फर्स्ट केस और सेकंड केस के टाइम का रेशियो क्या है, 4:1। 4:1 है, सॉल्व कर लो अब। ठीक है, सो x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, 1 सेकेंड फ्रेश पेज पे करते हैं, 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज टू 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। दिस स्पीड का रेशियो इज 4:1। ओके, तो x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2x, 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 दैट विल बी 4x, तो 4x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 4/1। ठीक है, 2x से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचेगा 2 और डिनोमिनेटर में है, ध्यान रखना इसको सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट मत कर देना। 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 4/1, यानी 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 कम्स आउट टू बी 8 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 8, so 4x square will be equal to 7 and hence x will be equal to square root of 7 upon 4। तो 4 को बाहर ले लोगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी आवर आंसर, यानी कि ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्या ये पार्ट क्लियर है? इंपॉर्टेंट ये था इस क्वेश्चन में सीखने का कि इफ आवर आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर का स्पीड, तो वी कैन एज्यूम दोज वैल्यूज एज सिंपल एज पॉसिबल, जो हमने इस क्वेश्चन में किया। तो डिस्टेंस हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने 1 किलोमीटर मान लिया, 1 किलोमीटर मान लिया, बिकॉज 1 तो हम हमेशा लिखेंगे ही लिखेंगे। दैट इज हाउ, क्योंकि हमें u बाई v का रेशियो चाहिए था, स्पीड का रेशियो चाहिए था, और स्पीड पे हमारा आंसर डिपेंड नहीं करता, कहीं पे भी कोई वैल्यू गिवन नहीं है एक्सेप्ट परसेंटेज, कुछ भी गिवन नहीं है। दैट इज वाई हम u बाई v को x अपॉन 1 मान सकते हैं, वही हमने मान लिया और उसी से अपना आंसर फाइंड आउट कर दिया। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो वी ओनली हैव टू कीप इट सिंपल ऑलवेज एज फार एज पॉसिबल। तो वेरिएबल्स को हमें कम से कम रखना है,
और इक्वेशन को अपने लिए सिंपल रखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको सिंपली अच्छे फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। सो दैट इज ऑल आई बिलीव इन दिस सेशन, और सेशन में जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा, और अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।